Hello everyone. Today we will discuss from the topic derived quantity. In previous classes we have already learnt about the fundamental quantity. Now we will start the term derived quantity. So everybody, let us start. First topic, it is derived quantity. We have already explained about the fundamental quantity. So students, now we have derived quantity. Derived quantity are those quantity that depends upon the fundamental quantity for their measurement and explanation. Just like the term speed. We have already learned about this topic in previous classes. Speed is just like a calculation with the respect of time, distance covered by the body. The definition of speed is distance covered by body per unit time. So speed is a derived quantity. Speed is a derived quantity. And how? तो स्पीड को गौर करें तो ये डिस्टेंस बाय क्या होता है? टाइम. डिस्टेंस समझ में नहीं आ रहा है कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी में तो था नहीं, बट डिस्टेंस ए टाइप ऑफ लेंथ है, ए टाइप ऑफ लेंथ. सो वी हैव लेंथ बाय टाइम. नाउ both are fundamental quantity. Length is fundamental quantity and the second time is fundamental quantity. So speed just derived from these fundamental quantity, that's why it is a derived quantity. Take another example, just like pressure. According to the definition of pressure, it is force per unit area. Force per unit area. Force is a different quantity. It is also a derived quantity. Force is also a derived quantity and area. Both are derived. From where? Look at this. From the definition of force. Force is mass into acceleration. Mass into acceleration. Mass is a fundamental quantity, but acceleration is derived quantity. Acceleration comes from the rate of change of velocity per unit time. Velocity also a derived quantity, just like the speed. Just like the speed. So student, pressure already a derived quantity. Let some example, just like density. Density, it is also a derived quantity. Density, mass per unit volume. Mass per unit volume. Mass is a fundamental quantity. It is a fundamental quantity, but the volume is derived quantity. And it is the comparison of fundamental quantity with the respect of derived quantity. So density already depends upon fundamental and derived quantity. So it is also a derived quantity. कहने का मतलब कि ये किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरह से फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं. So student, these are derived quantity. Now come to the point, units and magnitude. शायद आप लोग ये समझ चुके होंगे. फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में मैं पहले ही प्रीवियस जो क्लास लिया था उसमें मैं बता चुका हूँ कि हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी थे और 2 जो थे वो सप्लीमेंट्री या उसको हम को फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं. उसके बाद मैंने जो नेक्स्ट टर्म यूज़ किया वो था हमारा डिराइव्ड क्वांटिटी. तो डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये अपने एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन या मेजरमेंट के लिए हमेशा फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड होते हैं किसी न किसी तरह से. कभी डायरेक्टली आपको मिल जाएगा, कभी और उसको ब्रेक डाउन करते जाना है, फाइनली वो फंडामेंटल क्वांटिटी ही आएगा.
जैसे अभी इसे और भी करना था, इसे भी करना है, समझे ना। तो फाइनली जाकर के हम कहाँ पहुंचेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी पे। यानी ये सारे के सारे जो क्वांटिटी हैं वो किसी न किसी तरह से फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं। सो दीज आर डिराइव्ड क्वांटिटी। अदरवाइज आप ऐसे भी उसको समझ सकते हैं कि 7 और 2 टोटल 9 क्वांटिटी के अलावा दुनिया में जितने भी क्वांटिटी हैं अप्रॉक्सीमेटली वो सारे के सारे हमारे पास क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी। लेट्स स्टार्ट द यूनिट्स एंड मैग्नीट्यूड। हम लोग प्रीवियस क्लासेस में भी बहुत बार पढ़ चुके हैं यूनिट यूनिट अगेन एंड अगेन, लेकिन ये यूनिट है क्या। जस्ट कम टू द पॉइंट। यूनिट इट इज a standard in which we measure a particular quantity। कि ये एक ऐसा मानक है जिसमें हम किसी एक क्वांटिटी को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। जैसे हर डिफरेंट क्वांटिटी के लिए अलग अलग हमारे पास क्या होता है, यूनिट होते हैं। समय को हम सेकंड में मेजर करते हैं, मिनट में मेजर करते हैं, आवर में मेजर करते हैं, वीक, ईयर एटसेट्रा, बहुत सारे चीजें। उसी तरह से अगर आप गौर करें तो लेंथ को हम मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, ये सारे जो हैं एक अलग यूनिट है। हम कभी ऐसा नहीं करते हैं कि लेंथ को हम मेजर करने लगे टाइम के यूनिट में और टाइम को मेजर करने लगे लेंथ के यूनिट में। यानी पर्टिकुलर हर क्वांटिटी का अपना एक स्पेसिफिक यूनिट है। इसमें भी कुछ आपको लोकल एरिया में चल जाएंगे, कुछ आपको नेशनल लेवल पे चल जाएगा, लेकिन जब कभी हम डील करते हैं इंटरनेशनली तो वहाँ अलग यूनिट हमको देना होता है। सो आज हम लोग यूनिट मैग्नीट्यूड के बाद उसी यूनिट सिस्टम के बारे में भी जानेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा गेन करें। तो यूनिट इज अ स्टैंडर्ड इन विच वी मेजर अ पर्टिकुलर क्वांटिटी। क्लियर? जस्ट लाइक अगर हम लेते हैं लेंथ, अब आइए हम अगर चाहें तो यूनिट से ही सारे जितने भी, जैसे ये फंडामेंटल क्वांटिटी थे हमारे, तो इन सब का देख लें। और एक एसआई यूनिट, यानी ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, जिसके बारे में मैं फिर डिस्कस करूंगा यूनिट सिस्टम में। तो पहला हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी में लेंथ आता है। ऐसा यूनिट हमारा मीटर होता है। सेकंड मास है, ये हमारा केजी है। थर्ड टाइम, ऐसा यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट सेकंड है। फोर्थ टेम्परेचर, जनरली हम लोग यूज करते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट, लेकिन इसका ऐसा यूनिट होता है केल्विन, दैट इज इंडिकेटेड बाय के। फिफ्थ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक current, in short E current I have written, and electric current always measured in ampere. The SI unit of electric current is ampere. You have written in electric elements like bulb, fan, 5 ampere, 15 ampere, similarly like this. Sixth is luminous intensity. Luminous intensity, it is candela and it just denoted by CD. Seventh, amount of substance, and it is indicated by mole, MOLE. Other two co-fundamental quantity, co-fundamental quantity. First is plane angle,
generally we are measuring it in degree, but in SI unit system it is radian. And the solid angle, प्लेन एंगल तो हम लोग जैसे 60 डिग्री 75 डिग्री ये सब तो बहुतों बार 90 डिग्री बना चुके हैं, ड्रॉ कर चुके हैं, कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं, तो लेकिन हम वहाँ मेजरमेंट करते हैं इन डिग्री, बट ऐसा यूनिट में चलता है रेडियन। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। थर्ड ये सेकंड जो है हमारा सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल जैसे आप लोग कभी देखते होंगे, सपोज करो कोई एक कोन है, कोन जोकर टॉप में ये जो कैप होता है वो, या फिर आप आइस कप वगैरह जो देखते होंगे कुल्फी वगैरह के लिए, तो उन सब में जो टिप वो जो सॉलिड अगर फॉर्म हो तो ऐसे केस में जो वो एंगल होता है वो एरिया वाइज, जस्ट लाइक आप इसे इस तरह से समझिए। अब यहां देखिए ये सॉलिड एंगल आपको जो है, अगर सरफेस सॉलिड हो तो ये जो लैट, इसे अगर आप समझिए तो सैलेंट हाइट, जिसको हम लोग मैथमेटिक्स में कैलकुलेट भी करते हैं, इन दो सैलेंट हाइट के बीच जो एक सर्कुलर रीजन बनता है ये एक सॉलिड एंगल कहलाता है, और इसका यूनिट जो है वो स्टे रेडियन होता है। आप इन शॉर्ट इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, स्टे रेडियन। ठीक है, तो ये हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, और इसके अलावा जो हमारे पास 2 को फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, उनके लिए सारे के सारे एसआई यूनिट हैं। अब अगर हम यहीं से डिराइव्ड क्वांटिटी, तो डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में यहां अगर देखना चाहें, हमारा स्पीड था अभी, तो स्पीड ये आया था लेंथ बाय टाइम, तो लेंथ मेजर्ड इन मीटर एंड टाइम इन सेकंड, सो मीटर पर सेकंड इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। अगर हम ये सारे चीज को जान जाते हैं तो बाकी के जितने भी डिराइव्ड क्वांटिटी आएंगे हमारे पास, उन सारे का एसआई यूनिट हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि शायद मैंने यूनिट इस टर्म को इजीली समझा दिया। इसके बाद आता है हमारा मैग्नीट्यूड। जैसे आप कभी जाते हैं दुकान में और कहते हैं 5 kg चीनी देना, ठीक है, या शुगर देना, तो 5 kg कहने का मतलब क्या होता है? 5 kg इट मीन्स kg हाउ मेनी टाइम्स, ये 5 टाइम्स आ रहा है, यानी किसी भी क्वांटिटी के मेजरमेंट में उसका यूनिट जितनी बार आता है उसको हम क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। हाउ मेनी टाइम्स a unit comes in the measurement of a quantity, it is called magnitude. It is called magnitude. So student, we have learned derived quantity, units and magnitude today. Next topic is unit system. Next topic is unit system. But I think I have taken a lot of time, so we will meet in next class and learn about the unit system, multiple and submultiple of unit, interconversion of unit. Thank you. Have a nice day.